Hey guys, this is Pooja Dayaramani. Welcome back to BCR class. This is lecture number 2 of topic communication. I hope you all are doing well and that you're ready to start this new subtopic with me today. And I hope that you're high spirited because this is a really important topic and a fun topic, in fact. But it is really important because this is asked really frequently in exams. I hope you have seen my lecture 1 of communication, and if you haven't, let me summarize for you. हमने क्या cover किया था वहाँ पे? We had covered the introduction to communication, उसका definition देखा था हमने. Then we had covered steps of communication and process of communication. And today we are going to study broad categories of communication. Now, as this topic is covered frequently in exams, although it is very easy to understand, आप एक बार पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा. It is very easy stuff. It is something that you already know. It is only explained by way of examples here. So, even though it's easy, we are going to emphasize and dedicate this whole lecture on types of communication because we are going to understand what you're going to write in exams, the keywords, and understand this thing कि आप keywords नहीं लिखोगे exam में तो then you're not going to secure good marks. आप अपने language में बाकी का सब लिख सकते हो. Examples जो हैं सारे mention नहीं किए आपने, थोड़े अपने examples भी दिए तो भी एक बार चल जाएगा. But if you don't write those keywords, it is not going to work. So let's pay attention. Let's highlight these words. Let's understand what we have to write in exams. So let's get started, okay? Now, what are broad categories of communication? First of all, tell me why it is important to understand these categories of communication or mediums of communication. Now, as we saw, the definition of communication was, communication is a process of exchanging your ideas, information, thoughts, feelings and emotions through writing, through speech, through signal and through behavior. So यहाँ पे कुछ मीडियम्स या चैनल्स बताए गए हैं कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हो अपने आइडियाज़, थॉट्स, इमोशंस को. आप राइटिंग के थ्रू करते हो, स्पीच के थ्रू करते हो, बिहेवियर के थ्रू करते हो और सिग्नल्स के थ्रू करते हो. तो ये जो चैनल्स हैं ये पता होना क्यों ज़रूरी है आपको? क्योंकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ चैनल्स यूज़ करना आर बेटर देन अदर चैनल्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई अपना बिजनेस आइडिया पिच करना है इन्वेस्टर को. आपका कोई बड़ा आइडिया है और बड़ा इन्वेस्टर है. यू हैव टू इम्प्रेस दैट इन्वेस्टर और हैव टू कन्विंस दैट योर आइडिया इज़ रियली गुड एंड दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम टू इन्वेस्ट इन योर आइडिया. तो क्या आप उसको टेक्स्ट करोगे? आइडिया ऐसे व्हाट्सएप कर दोगे? नो, ऑब्वियसली नॉट. वहाँ पे मीडियम कौन सा यूज़ करना है आपको? यू हैव टू मीट हिम. आपको बताना पड़ेगा या राइटिंग में पूरा डॉक्यूमेंट करके जाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा उसको. तो ये जो आप मीडियम चूज़ करते हो कम्युनिकेशन का, इसका आपके पर्पस है जो कम्युनिकेशन का, उस पर बहुत इन्फ्लुएंस होता है. आपका मीडियम है, जो स्टाइल है कम्युनिकेशन का, वो सही होता है अगर उसको वो इंटरेस्टिंग है, उस पर कमांड है, जो सामने वाले को आप समझाना चाहते हो उसको अगर समझ में आ रहा है तो देन दैट पर्सन विल देन बी इंटरेस्टेड इन योर आइडिया or whatever you're communicating in that particular time. So let's read it once. A good understanding of different types and styles of communication can enhance your professional and personal relationships. It will resolve any misunderstandings and misconceptions and contribute to a successful business venture and a joyful personal life. Every person has his or her personal style of interacting. In process of communication, individual uses manifold channels to convey message. However, effectiveness of communication depends upon whether receiver has accurately interpreted the intended idea, thought or feelings. Okay, now one by one. Now it says that your good communication, you always listen to this कि आपका communication skill develop होना चाहिए, आपका communication skill अच्छा होगा, then you are going to excel in your life. It's because communication skills होते हैं जो ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एनहांस करते हैं. एनहांस मतलब इम्प्रूव. राइट इट डाउन. एनहांस मीन्स टू इट इम्प्रूव्स. आपके पर्सनल लाइफ में भी यूज़ होता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपका ये कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ होता है. इफ़ यू आर गुड एट कम्युनिकेटिंग, पीपल आर गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन योर आइडियाज़ बिकॉज देन दे अंडरस्टैंड इट बेटर. दे आर एंगेज्ड in your ideas at that time. Then
When your communication is clear, obviously कोई misunderstandings, miscommunications नहीं होंगे in that case. So it will lead to your successful personal life and professional life. अब हर किसी का एक पर्सनल स्टाइल होता है इंटरैक्ट करने का. इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं. जैसे आप देखते हो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करते हैं, अपना आर्ट एक्सप्रेस करते हैं, बहुत बार डांस के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करते हैं, म्यूज़िक के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करते हैं. मैनी अ टाइम्स यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस पॉडकास्ट. तो ऑडियो स्पीच के थ्रू खुद को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो. सो आपका एक पर्सनल स्टाइल होता है. दे पिक देयर स्टाइल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. पर ये जो स्टाइल है इसका इफ़ेक्टिवनेस आपका कम्युनिकेशन का किस चीज़ पे डिपेंड करता है? जब आपका जो रिसीवर होगा आपके मैसेज का, उसको वो एग्जैक्टली वैसे समझा जैसे आप समझाना चाहते हो आपका मैसेज. इट मीन्स द रिसीवर हैज़ एक्यूरेटली इंटरप्रेटेड, दैट इज ही हैज़ एक्यूरेटली अंडरस्टूड द इंटेंडेड आइडिया, योर थॉट और फीलिंग दैट यू आर कम्युनिकेटिंग. Okay, that's why it is important to understand these different ways of communication. So before we get into different modes of communication, we will watch a small video to understand how important modes of communication are. So I'll give you a brief context or history behind this video. So there's this girl who works at a restaurant as a waitress, and then she sees a girl there in a restaurant जो उसके friend की ex-girlfriend थी. So her friend and that girl have broken up now, and वो उसको देख के suddenly उससे बात करने जाती है. This is the history behind it. Okay, just watch the video first. Let's tune into the video. And I start. Okay, so what did you get from the video? You know, that guy, her friend, the waitress's friend, was dumped over an email. Oh my god, that sounds awful, right? Don't ever do that. You know, that is just horrible. The context of the video was not about her asking her कि तूने breakup क्यों किया. The context was तूने email पे breakup क्यों किया. You know, because that's how important the medium that you choose for communicating is. She even says, my friend is a mess right now. बिल्कुल ठीक नहीं है because you did that, because you broke up with him over an email. तो बहुत बार कैसे होता है, तुम्हारे मीडियम्स और चैनल्स आपके लिए अगर वो कंफर्टेबल नहीं भी होते हैं, पर पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको वही मीडियम यूज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट होता है वो ओवरऑल कम्युनिकेशन का या उस पर्सन पे, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बार नेसेसरी होता है कुछ वो. ओके, सो दिस वॉज जस्ट एन स्मॉल एग्जाम्पल, अ लाइट फनी एग्जाम्पल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपके पर्सनल लाइफ में भी ये जो मीडियम से चैनल्स आप यूज़ करते हो कम्युनिकेट करने की इम्पॉर्टेंट होते हैं. इट अफेक्ट्स योर पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड नो डाउट आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स पे भी अफेक्ट होता है. वहाँ पे तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉलो करना इम्पॉर्टेंट होता है. सो या दैट्स अबाउट इट. नाउ लुक एट दिस चार्ट. ये चार्ट आपके बुक में होगा, सो जस्ट गिव इट अ लुक, विल गो थ्रू इट. सो नाउ कम्युनिकेशन के दो अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं, कैटेगराइजेशन होता है. फर्स्ट इज बेस्ड ऑन चैनल्स, अनदर वन इज बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल. सो फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन. जो ये फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे, विल रीड अबाउट इट. लेट्स फोकस ऑन द हेडिंग्स. देयर इज फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन तब होता है जब हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, यू नो, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. व्हेन यू स्पीक और व्हेन यू राइट टू पीपल, आप टेक्स्ट करते हो तो भी वर्ड्स का यूज़ करते हो. व्हेन यू स्पीक यू यूज़ वर्ड्स एंड लैंग्वेज. तो ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यू नो. द नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज व्हेन इट्स अपोजिट ऑफ वर्बल. when you don't use words to communicate, you know, आप बिहेवियर के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जब कम्युनिकेट करते हो, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हो, ये जो नॉन वर्बल टाइप्स हैं, वेज हैं कम्युनिकेट करने के, वर्डलेस मैसेजेस सेंड करते हो, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है. नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन जो विजुअल एड के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो. फॉर एग्जाम्पल बाथरूम के बाहर साइंस होते हैं, यू नो, रेस्टरूम, मेंस रेस्टरूम का एक मेन का साइन होता है, देन देयर इज अ वुमेन ड्रॉन ऑन द डोर ऑफ वुमेन रेस्टरूम्स. सो वो एक विजुअल तरीका है कम्युनिकेट करने का, वहाँ पे वर्ड्स का यूज़ नहीं किया गया है, एक डायग्राम, एक सिंबल यूज़ किया गया है वहाँ पे. सो दैट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन.
Then based on purpose and style, there is one formal and informal communication. Formal communication कहाँ होता है? ऑफिशियल प्लेसेस पे, आपके वर्क प्लेस पे, ऑफिस पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. एंड देन आपका फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. अब फॉर्मल प्लेसेस पे, जैसे आपके वर्क प्लेस पे भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे बैलेंस होना चाहिए आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का. वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कब होता है? व्हेन यू टॉक टू योर कलीग्स. आप पूरा टाइम उनसे काम की ही बात नहीं करते हो. यू नो दैट टाइम यू टॉक टू देम ड्यूरिंग ब्रेक्स और लंच ब्रेक्स, व्हेन यू सिट विद देम एंड चैट. सो देयर इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टू इन अ फॉर्मल सिचुएशन. बट जब वर्क प्लेस पे आप काम की बातें करते हो, जैसे बिजनेस का फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर. लेट्स स्टार्ट विद वर्बल कम्युनिकेशन. Now, verbal communication involves use of words and language in delivering the intended message. Though verbal primarily refers to communication through spoken medium, while categorizing types of verbal communication, written and oral form of communication are included. Verbal communication क्या होता है? जहाँ पे हम words और language का use करते हैं, that is verbal communication. इसमें 2 सब categories हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन का एक ऑब्वियस एग्जाम्पल है, ऑब्वियस टाइप है ओरल, स्पीच के थ्रू कम्युनिकेट करना. बट रिटन कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे हम राइटिंग के थ्रू, ईमेल्स हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, वहाँ पे हम वर्ड्स ही यूज़ करते हैं, वर्ड्स और लैंग्वेजेस ही यूज़ होते हैं, तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक सब कैटेगरी है. लेट्स रीड फर्दर. Written communication includes letters and documents, emails, reports, handbooks, brochures, various chat platforms, SMS, and any form of written interaction between people. The written form of communication is essential and indispensable for formal business interactions and legal instructions and documentation. The effectiveness of written communication depends on writing style, grammar, vocabulary, clarity. See now, if written communication का short note आपके एग्जाम में आता है, what are the things that you are going to write? First of all, you are going to write that it is a category of verbal communication, जहाँ पे words और language का use होता है. Then you'll go with examples. यहाँ पे जब आपको examples दिए जाते हैं, कुछ formal examples दिए जाते हैं, कुछ informal examples आपको बताए जाते हैं. तो एग्जाम में आपको informal examples लिख के आने हैं, आप लिखो obviously. बट आपको फॉर्मल एग्जाम्पल्स तो लिखने ही है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, BCR जो सब्जेक्ट है आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन पे फोकस करता है. सो व्हाट दे आर इंटेंडिंग हियर इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि फॉर्मल सिचुएशन में ये चीज़ें कितनी यूजफुल हैं. सो यू राइट द एग्जाम्पल्स एज मच एज यू रिमेंबर. यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल्स. इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कंपल्सरी थिंग. यू रिमेंबर अ फ्यू ऑफ देम एटलीस्ट. सो द नेक्स्ट पॉइंट यू आर गोइंग टू राइट इज उसके एग्जाम्पल्स. एंड देन रिटन कम्युनिकेशन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट रिटन कम्युनिकेशन इज इसेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल इन फॉर्मल बिजनेस इंटरैक्शंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडिस्पेंसिबल? इंडिस्पेंसिबल मीन्स एब्सोल्युटली नेसेसरी. इसेंशियल मतलब इम्पॉर्टेंट. इट इज इम्पॉर्टेंट एंड एब्सोल्युटली नेसेसरी. In formal business interactions. Now why is it? A formal business interactions में क्या आता है? Contracts आते हैं, agreements that you get enter into, then there are memos, then there are business proposals जो हैं, ये सब writing में ही होना चाहिए, because it provides or it acts as an evidence. You know, आजकल ये contracts and agreements के बिना कोई business transactions नहीं होते. You know, you cannot just trust on people. You know, they'll just run as fast as they can. They'll take your money and run away. You know, it is really important to have evidence and documentations of every business transaction. इसको replace नहीं कर सकता है written communication को, business जो arrangement है उसमें. So, communication, the written form of communication is essential. It is important in formal business communication. This you have to remember. Then effectiveness of written communication depends on writing style, grammar, vocabulary, clarity.
ना आपका ग्रामर है, आप लिख के कुछ भेज रहे हो किसी को भी, आपका ग्रामर ऑब्वियसली सही होना चाहिए। आपका पास्ट प्रेजेंट टेंस में मिस्टेक हो रहा है तो आपका मैसेज सही से नहीं जाएगा। आपका वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए। वोकैबुलरी मतलब क्या? वोकैबुलरी मतलब वर्ड स्टॉक, शब्दकोश। किसी भी लैंग्वेज का, हर किसी पर्सन का पर्सनल एक वोकैबुलरी होता है। तो मेरा अगर वोकैबुलरी अच्छा है, मेरा वर्ड स्टॉक अच्छा, तो मेरा लैंग्वेज पे कमांड होगा। आई विल बी एबल टू बेटर डिलीवर द मैसेज। वो देन क्लैरिटी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नाउ सी, जैसे आप कोई प्रोविजंस पढ़ते हो लॉ में, टैक्सेशन में, यू विल नो कि ये जो प्रोविजंस होते हैं उसमें एक छोटे छोटे वर्ड का चेंज होने से उसका इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है। सो क्लैरिटी होना आपके मैसेज में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे। सो इसका इफेक्टिवनेस, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट क्लियरली होली delivering the message as you intend to be, the receiver will not understand, so that would not be effective communication then. तो effectiveness ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। रिटन कम्युनिकेशन में आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो राइट इट डाउन। वोकैबुलरी का मीनिंग है वर्ड स्टॉक। एंड देन यू आर गोइंग टू राइट एग्जाम्पल्स। ईमेल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्टिंग करते हो जो आप, ईमेल्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो भी आपके फॉर्मल कम्युनिकेशंस होते हैं बिजनेस प्लेस पे, वो ईमेल के थ्रू ही होने चाहिए। यू नो आई विल गिव यू अ लाइफ सेवर हियर। इफ़ यू आर टू टेक लीव, कभी भी अपने बॉस से जब आप बात करते हो ना, आपका जैसे ही डिस्कस हो जाता है या कंफर्म हो जाती है लीव, उसको ईमेल पे डाल दो एक बार। Otherwise, the day before, you are going to leave for Goa, he's going to say, okay, तुमने नहीं बोला था मुझे, you cannot go, and then your friends will go without you and have fun. True story, It's not happened with me, but it's a true story. And let's proceed, shall we? So, emails हैं, reports हैं, brochures हैं, ये chat platforms हैं जो, ये सब written communication का एक part है। सो जहाँ पे वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज़ होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन है। उसमें रिटन एंड ओरल ये सब क्लासिफिकेशन है। उसमें रिटन कम्युनिकेशन में एग्जांपल्स हैं ईमेल्स, लेटर्स, ब्रोशर्स, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, मेमोज, बिजनेस प्रपोजल्स, हैंडबुक्स एक्सेट्रा। रिटन कम्युनिकेशन इज एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल स्टाइल, अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन फॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड वो किस पे डिपेंड करता है? आपके राइटिंग स्टाइल पे, ग्रामर पे, आपके वोकैबुलरी पे और क्लैरिटी पे। उसका इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है। आर वी क्लियर? ओके, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यू कैन सी ईमेल इज एन एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। देयर आर मैगजीन में आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। मैगजीन है, देन देयर इज न्यूज़पेपर, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, वो भी written form है। and there is this informal example, that is texting apps. Okay, let's move on to oral communication now. Oral communication refers to communication through spoken word, either face to face, telephonically, via voice chat, video conferencing or any other medium. So you have to remember here is oral communication refers to communication through spoken word. Then you have to write examples, either face to face जो सामने बात होती है, टेलीफोनिकली जो आपकी बात होती है, वॉइस चैट के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो आपकी बात होती है, ये सब ओरल कम्युनिकेशन के मीडियम्स, ये मीडियम में इंक्लूड होता है। Then formal mediums are lectures, conferences, seminars, meetings, and informal conversations are chit-chat, gossip, etc. part of oral communication. Effectiveness of oral communication depends on clear speech and tone used by speaker. Speaking in too high, low volume, too fast or slow can also impair communication between people. Even non-verbal communication such as body language, visual cues affect the quality of interaction among individuals or group. Now what does it say? Now oral communication के formal mediums बताए हैं, informal mediums बताए हैं। यहाँ पे formal mediums में आता है lectures,
कॉन्फ्रेंसेज हैं, सेमिनार्स हैं। एंड नाउ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग्स अटेंड करना अब लीगलाइज कर दिया है। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। देन इनफॉर्मल जो एग्जाम्पल्स है उसके आप चिट चैट करते हो, लोगों के साथ गॉसिप करते हो, दैट इज़ ओरल कम्युनिकेशन। सो जो स्पोकन वर्ड के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो, इधर फेस टू फेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस चैट जो होता है आपका, या टेलीफोनिक कन्वर्जेशन होता है, दिस इंक्लूड्स इन ओरल कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? आपके क्लियर स्पीच पे, जो आप टोन यूज़ करते हो बात करने का। आप क्लैरिटी से जब बात नहीं करोगे तो सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा। बहुत फास्ट बात कर रहे हो आप, बहुत स्लो बात कर रहे हो, वो बोरिंग और एकदम टीडियस बना रहे हो आप उस चीज़ को, मंडेन हो जाता है वो, तो देन पीपल आर नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड, दे विल नॉट बी एबल टू टेक इट इन, सो दैट कम्युनिकेशन विल नॉट बी इफेक्टिव एट दैट प्लेस। सो कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस यहाँ पे स्पीच और टोन पे डिपेंड करता है। किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? स्पीच एंड टोन यूज बाय स्पीकर। Then next is even non-verbal communication such as body language, visual cues affect the quality of interaction among individuals or group. अब जब non-verbal communication करते हो आप, उस टाइम पे आपके facial expressions हैं, आपका body language है, ये भी एक help करता है communicate करने में, एक एक्स्ट्रा एडिशन होता है, एनहांस करता है आपके कम्युनिकेशन को वो। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो आपके योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज बॉडी लैंग्वेज, विजुअल क्यूज जो आप यूज़ करते हो। विजुअल क्यूज का एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप कोई मीटिंग में पाई चार्ट यूज़ कर रहे हो या डायग्राम यूज़ कर रहे हो, ग्राफ्स यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ विजुअल क्यूज। सो व्हेन यू यूज़ दैट, योर कम्युनिकेशन इज़ बेटर, यू आर बेटर एबल टू डिलीवर द मैसेज। सो दीज non-verbal communications help in delivering your oral messages also. Then verbal communication is easiest, fastest and most successful form of communication. Yet surprisingly, according to research, it comprises of only 7% of all human communication. Okay. Now you have to remember the statistics. यहाँ पे remembering का part ये है, जहाँ पे आपको ये 7% है जो आपको याद रखना है कि इवन दो वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो राइटिंग के थ्रू, बात करने के थ्रू, ये सबसे इजी होता है, सबसे फास्ट होता है, पर फिर और सक्सेसफुल भी होता है बहुत, पर फिर भी इट ओनली कंप्राइजेस ऑफ 7% ऑफ टोटल कम्युनिकेशन। हाउ मच? ओनली 7%। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो ओरल कम्युनिकेशन में आप क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू राइट कि इट इज अ सब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन where words and languages are used. Then उसके examples दोगे आप, formal examples, lectures, conferences, seminars, meeting, उसके informal जो examples हैं, gossips हैं, chit chats हैं, these examples will mention. Then you will mention effectiveness किस चीज़ पे depend करता है, tone है उसका जो, या फिर उसका speech, clear speech and tone पे depend करता है उसका effectiveness. एंड देन विल राइट कि 7% है जो ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है टोटल कम्युनिकेशन में। इवन दो इट इज फास्टेस्ट, ईजिएस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल मैनर ऑफ कम्युनिकेशन, इवन देन इट कंप्राइजेस ऑफ ओनली 7%। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है दैट इंक्लूड्स ओरल एंड रिटन ऑल टुगेदर, दैट इज 7%। ओके, नाउ वर्बल जो ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं, हियर दीज पीपल आर चिट चैटिंग, चैट कर रहे हैं, दिस इज ओरल कम्युनिकेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ओरल कम्युनिकेशन, यहाँ पे मीटिंग हो रही है, ओरल कम्युनिकेशन। दिस पर्सन इज टॉकिंग ऑन टेलीफोनिक कॉल, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स। नाउ व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? ओके, बिफोर वी गेट टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हम चार्ट बनाते जाएंगे जैसे जैसे पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू अपडेट द चार्ट एज एंड व्हेन वी कंप्लीट वन पर्टिकुलर हेडिंग ऑफ कम्युनिकेशन। सो लेट्स राइट इट डाउन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सी, आपके बुक में ये चार्ट ऑलरेडी है,
बट अब जब आप अपने हाथ से ये चार्ट लिखोगे ना, you'll remember it better. So please write it down along with me. Types of communication में 2 सब कैटेगरीज देखी हमने. उसमें से फर्स्ट कैटेगरीज था बेस्ड ऑन मीडियम और चैनल. बेस्ड ऑन मीडियम और चैनल. The first one being verbal communication. वर्बल कम्युनिकेशन ये टोटल कम्युनिकेशन का 7% कंप्राइज करता है. वर्बल में आता है वर्ड्स एंड लैंग्वेज का यूज़. इसके सब क्लासिफिकेशंस हैं. फर्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन, देन इज ओरल कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन का इफ़ेक्टिवनेस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उसके राइटिंग स्टाइल पे, ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे, क्लैरिटी पे. ओरल कम्युनिकेशन में उसका स्पीकिंग स्टाइल और टोन पे, उस पर डिपेंड करता है. एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स रिटन कम्युनिकेशन में? टेक्स्ट मैसेजिंग एज इनफॉर्मल. फॉर्मल मैसेजेस में क्या आता है? ईमेल्स, ब्रोशर्स हैं, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो प्रेस रिलीजेस होते हैं. So these are formal examples of written communication. Written communication is very essential and indispensable form of formal communication. And oral communication के examples क्या आते हैं? Chit chat, gossip, telephonic call, video conferencing. That's it. That's all you have to understand about this. Now let's move further. Now non-verbal communication. नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन यू कैन टेल नाउ. वर्बल कम्युनिकेशन का कम्प्लीटली ऑपोजिट, वर्डलेस मैसेजेस. जब आप आपके बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जब कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हो, उसको नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं. इसके काफ़ी सब हेडिंग्स हैं. लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड. नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय सेंडिंग, रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस. These messages can aid verbal communication. It can convey thoughts and feelings contrary to spoken words or express ideas, emotions on their own. Now what they are saying, non-verbal communication, ये wordless messages जब आप send करते हो, उसको non-verbal communication बोलते हैं. अब non-verbal communication जो है अपने आप में ही एक communication है. जैसे आप expressions के through खुद को communicate करते हो, तो दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू. बट बहुत बार ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विथ वर्बल कम्युनिकेशन टू एनहांस द कम्युनिकेशन. जो आप एनहांस करता है उसका इफेक्टिवनेस. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला, आप जब बात करते हो तो आपको बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल जाता है. इट समटाइम्स इवन सेज समथिंग कॉन्ट्ररी टू वॉट यू आर सेइंग. जो आप बोल रहे हो उसके कॉन्ट्ररी आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ एक्सप्रेस करता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टॉकिंग टू समबडी, यू नो दे से दे आर इंटरेस्टेड, बट उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत बार बताता है, वो बार बार वॉच की तरफ देख रहे हैं, दे आर यॉर्निंग, एंड यू नो दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इवन दो दे से दे आर. देन a person has put their head down, you understand that person is upset or not well. Even if that person says, you ask them, you go and ask, उनको पूछो जाके कि आप कैसे हो, they say they are okay. But आपका उनका चेहरा देख के, उनका body language देख के बहुत बार समझ में आता है कि okay that person is not well, even though he is saying so. तो बहुत बार आप जो बोल रहे हो ना, उससे contrary आपका जो body language है, जो non-verbal communication है, वो communicate कर जाता है. Okay. So some of the functions of non-verbal communication in humans are to complement and illustrate. Compliment करना मतलब, see this is not compliment मतलब तारीफ वाला compliment नहीं. This is a compliment with an E. Compliment यहाँ पे meaning होता है add करना, enhance करना. Complement and illustrate. Illustrate मतलब उसको elaborate करना और properly उसको explain करना. ये नॉन वर्बल का फंक्शन होता है. देन टू रीइंफोर्स एंड एम्फसाइज. अब जैसे कि आप किसी वर्ड पे एम्फसिस करते हो, या व्हेन यू आर एंग्री योर टोन सडनली गेट्स हाई, तो यू आर एम्फसाइजिंग ऑन योर इमोशन एट दैट पॉइंट.
तो ये एम्फसाइज करता है रिप्लेस एंड सब्सटीट्यूट, मतलब बहुत बार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये वर्बल कम्युनिकेशन को कम्प्लीटली सब्सटीट्यूट कर देता है। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे आपने मिस्टर बीन देखा होगा कभी, तो वहाँ पे उनका जो स्टोरी टेलिंग है, इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी टेलिंग थ्रू ऑलमोस्ट वर्डलेस मैसेज, वो एक विजुअल है पूरा। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल फॉर्मेट है उसने जो है वो वर्बल फॉर्मेट को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया वहाँ पे। सो दैट देन टू कंट्रोल एंड रेगुलेट करना आपके मैसेजेस को जो आप डिलीवर कर रहे हो, एंड टू कॉन्ट्रडिक्ट द डिनोटेड मैसेजेस। बहुत बार आपके मैसेजेस को कॉन्ट्रडिक्ट भी करता है आपका नॉन वर्बल बिहेवियर है जो, या आप जो साइंस प्रेजेंट कर रहे हो, आपका टोन ऑफ वॉइस है, जेस्चर्स पोस्चर्स हैं जो। So these are some functions of non-verbal communication. So see, these messages can aid verbal communication. They convey thoughts, feelings contrary to spoken words and express ideas and emotions on their own also. उसके कुछ functions है. You have to remember something here. You have to remember that non-verbal के जो functions हैं उसमें क्या आता है? It can enhance even more, it can complement your verbal messages, it can emphasize on some parts, it can replace it or control it, okay, and contradict it sometimes. So you don't have to remember all these words here. You can also say this in your own language, but हो सके जितना तो remember these few words कि उसको complement करता है, better explain करता है, बहुत बार substitute करता है, बहुत बार contradict करता है, बहुत बार control या regulate करने में हेल्प करता है ये। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, देयर इज दिस लिटिल किड हु इज कम्युनिकेटिंग थ्रू साइन लैंग्वेज, सॉरी दिस इज साइन लैंग्वेज, दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स। द नेक्स्ट इज हैंड सिग्नल्स। नाउ दिस गाय इज डाइविंग अंडर वाटर, स्विमिंग अंडर वाटर, तो वहाँ पे नीचे आप जाके अंडर वाटर बात नहीं कर सकते, राइट। सो आपको हैंड सिग्नल्स बताए जाते हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है एक बेसिक, जहाँ पे जो बेसिक चीज़ें आप कम्युनिकेट कर पाते हो जो नीचे जाके आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे दे आर गोइंग टू आस्क यू इफ यू आर ओके, देन इफ़ यू वांट टू गो अप देन यू हैव टू डू दिस हैंड सिग्नल कि ऊपर जाना है मुझे, आई एम नॉट कंफर्टेबल, वांट टू गो बैक अप। सो ये हैंड सिग्नल्स आपको सिखाए जाते हैं वहाँ पे। So this is a form of non-verbal communication. अब non-verbal communication के further classifications देखेंगे हम एक एक करके। First is physical non-verbal communication. An individual's body language, that is facial expressions. ये पूरा highlight कर लेना। Individual's body language, that is facial expressions, stance, gestures, tone of voice, touch and other physical signs constitute this type of communication. अब facial expressions तो आपको पता है क्या है। stance मतलब क्या? stance means the way you stand. आपका posture क्या है? Then gestures means hand movements. हैंड मूवमेंट्स। देन टोन ऑफ वॉइस, जो टच है, बाकी के फिजिकल सिग्नल्स हैं, इट कंस्टिट्यूट्स दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ मेनी अ टाइम्स यू कैन जस्ट लुक एट अ पर्सन and see how that person is reacting, and then you'll understand what that person is feeling, right? That person is smiling, you know that person is happy. Then if he's frowning, you know he's angry or sad. Then stance होता है, posture होता है खड़े रहने का, it says a lot about you know if you're interested. और gestures होता है बात करते हैं, आपके hand movements वो आपको आपकी जो communication को enhance करते हैं बहुत बार। Then tone of voice है, you know if you want to emphasize on some word, तो आपका tone बढ़ता है वहाँ पे। If someone is angry, he is going to speak in higher tone, right? So tone of voice है, touch है, when you handshake करते हो आप किसी के साथ, then you pat on someone's back or you hug a person, those are gestures of communicating. Then examples हैं इसके, leaning forward may mean friendliness, acceptance and interest, while crossing arms can be interpreted as antagonist or defensive posture.
Research estimate that physical non-verbal communication accounts for 55% of communication. Smiles, frowns, pursing of lips, clenching of hands transmit emotions which are not expressed through verbal communication. Okay, now let's see a video for this before and then we'll get back to this text, okay? तो इसका context बता दूँ मैं पहले video का आपको. In this video, there is this guy who has his own YouTube channel and he is giving information about flags, and in that particular episode that person has invited his friend to his YouTube जो भी channel है उस पे जो भी episode है उसका. So let's just tune into the video and then we'll talk about this. Okay. Hello, I'm Dr. Sheldon Cooper. Welcome to Sheldon Cooper Presents Fun. Okay, so what did you get from this video? Welcome. Not so welcome. This means your body language also many a times expresses your emotions in a way your words can't. You know, when your body, आपके body language आप lean करते हो आगे, that means friendliness, acceptance. When you smile at a person, you show that okay, I'm interested in talking to you. या फिर आप जब भी अपने हैंड्स, आपका इंटरव्यू पे जाते हो, बहुत बार ऐसे होता है आप नर्वस होते हो, आप आपके हैंड्स बहुत बार ऐसे पर्स करते हो, सो देन दैट शोज नर्वसनेस. ये जो भी पोस्चर्स हैं आपके या फिजिकल जो भी आपके मूवमेंट्स हैं, ये बहुत बार आपका कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ अबाउट 55% ऑफ टोटल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल में सिर्फ जो फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो ही 55% ऑफ टोटल कम्युनिकेशन होता है. वर्बल कितना था? ओरल और रिटन मिला के 7%. नॉन वर्बल में फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही 55% ऑफ टोटल कम्युनिकेशन को कंस्टिट्यूट करता है. इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट. ये खुद में भी एक टोटली इंडिविजुअल, क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंट, ये खुद में ही एक इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन का एक टाइप है जहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशंस आपके या जो फिजिकल टच है आपका, सिग्नल्स हैं, टोन ऑफ वॉइस है, जेस्चर्स, पोस्चर्स, स्टांस है, ये खुद में ही एक कम्युनिकेशन है या बहुत बार आपके वर्बल कम्युनिकेशन को एक कॉम्प्लीमेंट करता है ये. ओके, सो लुक एट द एग्जाम्पल्स. This is facial expressions. So you can tell that this person in the first picture is frowning. In second picture, that person is happy. In third picture, that person is very excited or surprised. So facial expressions के through आपके उसको feelings convey हो रहे हैं. Then next is body language के signs. Let me zoom into this. This person is sitting like this. That means he is bored. The person is depressed if he is heading down. Then the person is elated or thoughtful. You know, तो उसके body language के through ये communication है. This is physical non-verbal communication. Now next is paralanguage. Okay, before we read this, we are going to see one more video. So yeah, इसका कोई कंटेक्स्ट नहीं दूंगी. लेट्स ट्यून इनटू इट डायरेक्टली. ओके, सो इज़ इट क्लियर कि पैरा लैंग्वेज क्या है? पैरा लैंग्वेज मतलब आप किस तरीके से वो चीज़ बोल रहे हो उससे आपका इंटेंशन पता चलता है. यू नो, द वे यू स्पीक रिवील्स द इंटेंशन. आप एक्चुअल वर्ड है ना वो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट द वे यू से इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ द पॉइंट वेयर इट कन्वेज योर मैसेज, राइट. So the voice of quality, the intonation है जो, या फिर pitch है, stress, emotion, tone and style of speaking communicates approval या communicates interest or lack of interest. तो intonation मतलब क्या? Intonation means fall and rise in your voice. मीन्स इनोटेशन. उसका पिच है, स्ट्रेस है, टोन है, ये चीज़ें जो है ये पैरा लैंग्वेज में आती हैं. एंड पैरा लैंग्वेज है जो टोन ऑफ वॉइस, इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ अबाउट 38% ऑफ टोटल कम्युनिकेशन. हाउ मच? 38%.
लेट्स रिवाइज इट वन मोर टाइम ये स्टैटिस्टिक्स. वर्बल कम्युनिकेशन कितना था? 7%. एंड फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना था? 55%. एंड पैरा लैंग्वेज कंस्टिट्यूट्स फॉर अबाउट 38% ऑफ ऑल कम्युनिकेशंस. सो यू हाईलाइट दिस. यहाँ पे द वे यू से समथिंग, इट सेज more than actual words or it reveals the intent of message. The voice, quality, intonation, pitch, stress, emotions, it communicates approval, interest or lack of it. Now see, paralanguage, ये क्वेश्चन आपको इससे पहले एग्जाम में पूछ चुके हैं एक बार. अब ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था उस टाइम पे, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 4 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं वहाँ पे, राइट? पर ये है तो सिर्फ 2 सेंटेंसेस, तो आप कैसे लिखोगे इसको? First of all, you are going to write that paralanguage is one of the classifications of non-verbal communication. आप लिखोगे non-verbal मतलब wordless messages को communicate करना, that is non-verbal communication. Then you will explain what is paralanguage. वहाँ पे आप लिखोगे the way you say something, it says more than actual words, it reveals the actual intention of what you are saying. And then you will write the voice, annotation, quality, tone. ये सब जो है वो कम्युनिकेट करता है. आपका इंटरेस्ट है कम्युनिकेट करता है, इंटरेस्ट नहीं है आपका वो कम्युनिकेट करता है, अप्रूवल कम्युनिकेट करता है, रिजेक्शन कम्युनिकेट करता है. देन यू आर गोइंग टू राइट द लास्ट पॉइंट दैट इट कंस्टिट्यूट्स फॉर अबाउट 38% ऑफ ऑल कम्युनिकेशंस. ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर कि आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पॉइंट्स कितने लिखने हैं. तो 2 मार्क्स का है, यू राइट 4 पॉइंट्स. आपको अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा है, यू राइट 6 पॉइंट्स बिकॉज दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. Okay. The next is aesthetic communication. Now, what is aesthetic ka meaning? Aesthetic means relating to art or beauty. So, aesthetic communication में क्या आता है? Art forms आते हैं. डांसिंग है, म्यूज़िक है, स्कल्पटिंग है, पेंटिंग है, एक्सेट्रा. दीज आर ऑल पार्ट ऑफ एस्थेटिक कम्युनिकेशन, जहाँ पे आर्ट के थ्रू एक आर्टिस्ट जब खुद को कम्युनिकेट करता है, अपने आइडियाज़ को या थॉट्स को एक्सप्रेस करता है डिस्टिंक्टिवली, इवन दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. सो वो एस्थेटिक कम्युनिकेशन का पार्ट है. यू कैन सी हियर डांसर, अ बैलरीना एंड हियर अ पेंटर. So what is important here is art forms. Aesthetic में आते हैं art forms such as dancing, painting, sculpting, music. They convey the ideas and thoughts of artist. Okay. एक आर्टिस्ट के आइडियाज और थॉट्स को कम्युनिकेट करता है एक आर्ट फॉर्म के थ्रू. दैट इज एस्थेटिक कम्युनिकेशन. ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट these pictures? Does your appearance or your clothes also communicate something? Yes, it does. अब ये पिक्चर देख के आपको क्या पता चल रहा है? This woman, she is obviously dressed for a party or a social event. And the other person in the second picture, this woman is dressed in formal blazer and trousers. So she must be going for work. So आपका appearance है जो, ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयरेंस है जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है किसी पे भी. दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेज अ लॉट अबाउट यू. नॉट ओनली एक आप कहाँ जा रहे हो ये चीज़, बट ऑल्सो इट ऑल्सो डिनोट्स और सेज समथिंग अबाउट योर कल्चर टू. यू नो, जैसे आपने किसी को टर्बन पहनते हुए देख लिया तो यू नो इट इज़ अ दैट पर्सन इज़ अ सिख. या किसी को लुंगी पहनते हुए देखा आपने, देयर आर गर्ल्स, पंजाबी गर्ल्स हु डोंट कट देयर हेयर, ये उनके अपीयरेंस का पार्ट है. क्लोथ्स होते हैं, साड़ीज़ के वेरियस टाइप्स होते हैं, वो अपीयरेंस कुछ बताता है आपको उनके कल्चर के बारे में भी. So that's that. And before we read into the text of appearance, what did you understand from that video? That guy, when he was very shabby and he was not cleaned up, those girls were scared of him. You know, they fogged him and they were not interested or they got scared of him. And as soon as the guy cleaned up, the girl was interested in talking to him. Because आपकी अपीयरेंस ये फर्स्ट चीज़ लोग नोटिस करते हैं आप में, तो आपको जज करते हैं. वो आपके अपीयरेंस से वो जज कर लेते हैं कि आप ऑर्गेनाइज्ड हो क्या, आप शाबी हो क्या, कि आप प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड एंड मेथोडिकल. whereas sloppy or shabby person
fails to make a favorable impression. Therefore, dressing appropriately in formal interactions is emphasized. Especially formal situations में आपको appropriately dress करना होता है. That is very important. इंटरव्यू पे क्या पहन रहे हो, आप मीटिंग पे जाते टाइम क्या पहन रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द ड्रेस कोड इन ऑफिस इज जनरली फॉर्मल. ऑफकोर्स आपको लाइट कलर पहनने होते हैं, ट्राउजर्स पहनने होते हैं, शर्ट्स पहनने होते हैं. गर्ल्स को साड़ीज या फिर शर्ट्स, 2 पीस स्कर्ट सेट पहनना अलाउड होता है. सो दीज आर सम रूल्स फॉर ड्रेसिंग इन अ फॉर्मल सिचुएशन. देन लास्ट इज सिम्बल्स. सिम्बल्स सच एज रिलीजियस स्टेटस और ईगो बिल्डिंग सिम्बल का एग्जाम्पल देख लीजिए, रिलीजियस सिम्बल्स हैं. देन नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन. अभी हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन को कंप्लीट किया. वर्बल कम्युनिकेशन में हमने 2 क्लासिफिकेशंस देखे, दैट वाज ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने फर्स्ट देखा फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन that comprised of about 55% of total communication. उसमें क्या था, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस था, आपका स्टांस था, जेस्चर्स था, आपके फिजिकल सिग्नल्स थे दूसरे जो कम्युनिकेट करते हैं. देन 55% था वो कंप्राइज करता है टोटल कम्युनिकेशन को, फिजिकल कम्युनिकेशन. देन व्हाट वर द एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल लीनिंग फॉरवर्ड मीन्स फ्रेंडलीनेस, या फिर आपका जो क्लेंचिंग ऑफ हैंड्स है दैट शोज नर्वसनेस. बहुत बार आपका फिजिकल नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है वो आपके वर्ड्स को कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्ट करता है. यू नो, समटाइम्स क्रॉसिंग आर्म्स, इट मीन्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड. व्हेन यू आर सिटिंग लाइक दिस, इट मीन्स दैट यू आर बोर्ड, यू नो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड. सो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, यू नो, इट विल ट्रांसमिट द इमोशंस जो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं. So that's that. Paralanguage means tone of voice. The way you say something, it reveals more than what you have intended. Okay, that constitutes of about 38% of total communication. उसमें क्या आता है? The quality of speech. उसमें notations मतलब rise and fall in your voice. Then tone है, आप stress देते हो किसी word पे, कोई emotion है जो आपका उससे कन्वे कर रहे हो आप. ये स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है जो, ये आपका अप्रूवल है या इंटरेस्ट है या लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये उससे कम्युनिकेट होता है. दैट इज पैरा लैंग्वेज. देन थर्ड वाज एस्थेटिक कम्युनिकेशन विच रिलेट्स टू आर्ट फॉर्म्स, डांसिंग, स्कल्पटिंग. देन व्हाट वाज पेंटिंग वाज अनदर एग्जाम्पल. Music was another example here. So these were aesthetic forms of communication जहाँ पे आर्टिस्ट अपने thoughts और ideas distinctively अपने आर्ट के थ्रू, नॉन वर्बली मतलब एक आर्ट के थ्रू वो खुद को एक्सप्रेस करता है. दैट इज एस्थेटिक कम्युनिकेशन. देन देयर वाज अपीयरेंस. अपीयरेंस मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन होता है. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल नोटिस इन यू. When you are properly dressed or groomed, people are going to presume that you're organized, that you're methodical. And when you're not properly dressed or groomed, they are going to judge you. They're going to presume that you're not, that will not make a favorable impression. Okay, that they are going to presume that you're not organized or you're not methodical in that situation. तो ये जो फॉर्मल सिचुएशन में ड्रेस कोड है ये बहुत असेंशियल होता है. तो आपको टी शर्ट्स, स्लोगन्स वाले टी शर्ट्स नहीं पहनने होते हैं, लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनने होते हैं, जीन्स अलाउड नहीं होता है, आपको ट्राउजर्स पहनने पड़ते हैं, आप शूज़ कौन से पहनते हो वो इंपॉर्टेंट होता है. फॉर वुमेन साड़ीज इज़ परमिसिबल, ट्राउज़र एंड शर्ट या स्कर्ट सेट जो फॉर्मल एथनिक वेयर है वो अलाउड होता है. सो दैट इज़ कवर्ड इन अपीयरेंस. एंड नेक्स्ट इज सिम्बल्स. सिम्बल्स में क्या आता है? रिलीजियस सिम्बल्स आते हैं, स्टेटस, ईगो बिल्डिंग सिम्बल्स आते हैं वहाँ पे. सो दैट्स अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Now let's get to the chart and we'll complete this visual communication and then we'll complete the chart once and for all. Now what is visual communication? The word itself says it, you know, visual. एक विजुअल्स का हेल्प लेके जब आप कम्युनिकेट करते हो उसको विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं. जैसे कि आप मैप्स हैं,
आप किसी मॉल में जाते हो, वहाँ पे नीचे मैप लगे होते हैं, या मीटिंग में पाई डायग्राम्स, ग्राफ्स यूज़ होते हैं, वो एक विजुअल एड है। विजुअल एड के थ्रू कम्युनिकेशन है। आपको वर्ड्स के बजाय वहाँ पे कुछ पिक्चर्स या इमेजेस के थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो दैट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। लेट्स रीड इट। Visual communication through visual aids such as signs, typography, drawing, graphic design, illustration, color, and other electronic resources usually reinforces written communication. Written communication को usually reinforce करता है, ये बहुत बार replace भी करता है इसको totally, but mostly it reinforces it. Typography मतलब क्या? What do you mean by typography? टाइपोग्राफी मीन्स द वे यू राइट समथिंग। जैसे आप फॉन्ट कौन सा यूज़ कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो, उसको टाइपोग्राफी बोलते हैं। देन ड्राइंग्स हैं, डिज़ाइंस यूज़ करते हो आप, कलर या इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, जैसे कि आपने ट्रैफिक सिग्नल देख लिया नीचे, ट्रैफिक सिग्नल है जो कलर्स का यूज़ करता है, ये विजुअल्स का यूज़ करके आपको सिग्नल्स या डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है वो। Then this is Charlie Chaplin movie, that is mute movie, ये visuals हैं। And last is pie diagram, pie chart. Visual communication is a powerful medium. Its examples are graphs, pie charts, other diagrammatic representations that convey clearly and concisely a great deal of information. They are essential part of official presentation these days. अब ऑफिस प्रेजेंटेशंस में आपको पता है कि बहुत बार डायग्रामेटिकली जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो कंसाइज वे में दी जाती है। जैसे आपने पाई चार्ट बता दिया, कोई स्टैटिस्टिक्स बता दिए, तो वो स्टैटिस्टिक्स बहुत क्लियरली एक डायग्राम के थ्रू समझ में आते हैं। इंस्टेड ऑफ आप लिस्ट करते हो ये इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, इंस्टेड ऑफ दैट इफ़ यू ड्रॉ डायग्राम, ग्राफ और अ चार्ट, इट विल बी ईजिली कन्वेड। बहुत बार कंपैरेटिव डेटा भी डाला जा सकता है आप ग्राफ में, तो इट विल मोर अमाउंट ऑफ डेटा विल बी कंटेन्ड, और इट विल बी कंटेन्ड इन अ स्मॉल स्पेस, इन अ स्मॉल टाइम। इट कैन बी कंसाइज मतलब शॉर्ट। In a short way, great deal of information can be conveyed through visual communication. It is a very powerful communication, and in formal or in official presentation these days it is essential part now. So आप इसके examples लिखना, graphs, pie charts, other diagrammatic representations, और official presentations में ये बहुत essential है आज। Okay. So what is visual communication? Once again, signs, typography, drawing, जो ग्राफिक डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, कलर, मतलब जो विजुअल एड्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, दैट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। बहुत बार ये रिटन कम्युनिकेशन को रीइंफोर्स करता है। इट इज़ वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एंड एग्जाम्पल्स आर ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, डायग्राम्स, which are essential part of office presentation these days. Okay, so I guess everything is clear now. If you have any doubts or queries relating to any of these topics, you can contact me on this number. You can contact me on this number. Please write it down. 9322244696. For queries or doubts, contact me on this number. I'll give you a minute to write it down, and then we'll go to the chart and complete the chart. Okay, now next is non-verbal communication. Write it down. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है? वर्डलेस मैसेजेस, उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज फिजिकल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें बॉडी लैंग्वेज,
postures, gestures, expressions, touch, etc. ये इंक्लूड होता है and it comprises of 55% of total communication. Then second is paralanguage. जो कि 38% है total communication का. See, you have to remember these statistics, okay? It is important to write in exam. कि 38%, 55%, 7% है जो. So write it down. Paralanguage में क्या आता है? Tone, then speech quality, annotations, then stress on a certain emotion जो है वो, style of speaking, etc. Tone, speech quality, annotations, stress, style of speaking. ये paralanguage में आता है. What was next? It was aesthetic communication. AESTHETIC. Aesthetic communication. This was related to what? Art and beauty. यहाँ पे artist जब अपना मैसेज है, आइडिया या थॉट आर्ट के थ्रू कम्युनिकेट करता है तो वो एस्थेटिक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, जैसे कि पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, एक्सेट्रा. दैट इज आर्ट फॉर्म्स. नेक्स्ट वाज अपीयरेंस. फर्स्ट इम्प्रेशन, आपको एग्जाम्पल्स देने हैं इसके कि आपको फॉर्मल जो सेटिंग है, वर्क प्लेस है, वहाँ पे क्या पहनना है आपको, उसके बारे में आपको लिखना होगा. ओके, ड्रेस कोड जो होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, ये जो अपीयरेंस होता है आपको, तो emphasize on dress code, in formal interactions. फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, आपको एम्फसाइज करना है ड्रेस कोड पे, फॉर्मल इंटरैक्शंस के टाइम पे. अगर आप प्रॉपरली ड्रेस्ड हो तो देन दे विल प्रिज्यूम दैट यू ऑर्गेनाइज्ड. इफ यू आर नॉट, इट विल फेल टू मेक अ गुड इम्प्रेशन. एंड देन यू विल राइट अबाउट ड्रेस कोड कि क्या क्या है, जैसे कि आपको टी शर्ट्स पहनना, स्लोगन्स वाले टी शर्ट्स नहीं पहनने हैं, आपको लाइट कलर्ड शर्ट्स पहनने हैं, ट्राउजर्स पहनने हैं, शूज़ पहनने हैं. फॉर गर्ल्स साड़ीज़ और एथनिक वेयर, प्रॉपर फॉर्मल एथनिक वेयर पहनना अलाउड है, या फिर 2-piece स्कर्ट सेट पहनना अलाउड है. सो दैट यू आर गोइंग टू राइट हियर. देन लास्ट इज सिम्बल्स. Symbols such as religious, status, or ego building. That's it. And last one in communication based on medium or channel is visual. विजुअल कम्युनिकेशन, जहाँ पे विजुअल एड्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे साइंस, टोपोग्राफी, ड्राइंग है, ग्राफिक डिज़ाइंस हैं, पाई चार्ट्स इसका एग्जांपल है, पाई चार्ट्स है, ग्राफ्स है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन ऑफिस प्रेजेंटेशन दीज डेज. बहुत बार ये रिटन कम्युनिकेशन को
completely रिप्लेस करता है, बहुत बार रीइंफोर्स करता है रिटन कम्युनिकेशन को, विजुअल कम्युनिकेशन, राइट. इट इज़ अ पावरफुल मीडियम टू कम्युनिकेट दीज डेज. ओके, इसकी एग्जाम्पल्स लिख लेना आप. साइंस, टाइपोग्राफी, diagrams, etc. Okay, so today what we completed was types of communication based on medium or channel, जहाँ पे verbal, non-verbal और visual communication complete किया. So yeah, that's all for today. Tomorrow we are going to take up further types of communication and further subtopics of communication. Okay, so thank you for watching the video. I hope you liked it. If you're still here with me, you liked the video, please give a thumbs up so I'll know. Let me know about it. If you're enjoying to learn with me. Okay, let's do this again. Okay, so that's it for today. So what we completed today was types of communication based on medium and channel, जिसमें हमने verbal, non-verbal और visual communication देखा. Tomorrow we are going to see further classification based on style and we'll see the further subtopics. If you're here with me and enjoying learning with me, please leave a thumbs up, like the video and let me know about it, okay? That's all for today. Thank you for watching.